Jai Hind everyone. Today we will discuss a type of फंक्शन. हम ये सीरीज जो है टाइप ऑफ फंक्शन की पढ़ रहे थे, इसमें आज हम मॉडुलस फंक्शन को डिस्कस करें और समझेंगे कि ये मॉडुलस फंक्शन होता क्या है. द फंक्शन f of x defined by like that x when x is greater than equal to 0, negative x when x less than 0. This is called a modulus function. This is called a modulus function. Can write is called the modulus function. This function is called a modulus function. It is also called the absolute value function. ये जो फंक्शन है इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं और मॉडुलस फंक्शन भी बोलते हैं. एंड डोमेन ऑफ मॉडुलस फंक्शन is R, mean all real numbers. Can write all real numbers. Okay. And the range of modulus function all non-negative real numbers. It means R plus. So this is a range of the modulus function. And you can also say that this 0 to infinity. Okay, so this is the range of the modulus function. All negative real numbers. So this is important for this function. And now for real number, some of the important things also. Number x square root of x square is equal to mod of x. This and same as it is, for example, for this square root of cos square x is equal to mod of x. Cos x is equal to, can represent like that, cos x when value 0 to x less than is equal to pi by 2, and minus cos x value will be pi by 2 less than x less than is equal to pi. This is an example for this point. Okay, so basically this is a modulus function
And the graph of the modulus function, x, x dash, y and y dash. This is a negative side, 1, 2, 3, 4, same as it is minus 1, minus 2, minus 3, minus 1. So we can like this is a origin straight line with this meet with origin and other straight line will also, this is a straight line. Okay? This is a function y is equal to mod of x. So this graph for the modulus function. ध्यान रखें ये दोनों लाइनें स्ट्रेट लाइन ही रहेंगी. सो ये जो है मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ. तो बेसिकली इस फंक्शन में इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि मॉडुलस फंक्शन दिस इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू mod of x like that. It's called modulus function and we all know domain is R, all real number, and range is all positive real number. You can also represent like that modulus of function. Okay, so basically this is a representation of a modulus function. We all know this is also called absolute value function. And now let us understand another type of function. The second one is greatest integer function. Greatest greatest integer function क्या होता है अभी ये समझते हैं. फंक्शन from real to real defined by defined by of x is equal to like that. This is a symbol of for the greatest integer function for all x belongs to a real number is called the greatest integer. Greatest integer function. It is also called a steps function. Okay, it is also called step function. This is also important type of functions. Now सबसे पहले देखते हैं डोमेन और रेंज क्या है. Greatest integer function all real number is R, all real number, and range of greatest integer function is all integers in Z.
positive and negative number. So these all are the range for this function. And now अब इसको देखते हैं, समझते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या कह रही है. So suppose you have value with greatest integer function. वैसे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या करते हैं कि मिनिमम वैल्यू और इक्वल वैल्यू, लेस देन और इक्वल टू वैल्यू, लेस वैल्यू और इक्वल वैल्यू ली जाती है. सपोज x belongs to real number, then greatest integer value may be less than और इक्वल. ये दो पॉसिबिलिटीज हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की. -1 for -1 less than is equal to s less than 0. ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फॉर 0 किस कंडीशन में होगी? 0 लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू 1. इसकी वैल्यू प्लस 1 कब होगी? टू कब होगी? समझ रहे हैं? मतलब 1 कब होगी? जब वैल्यू 2 से कम होगी. 2 कब वैल्यू होगी? जब उसकी जो भी वैल्यू 3 से कम होगी. तो लेस वैल्यू ले रहे हैं इसमें. और इक्वल जैसे 0, 0 कब होगी? जब 1 से वैल्यू कम होगी. इज इट क्लियर? आप समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू. सपोज इट इज गिवन 2.75. इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी? 2. इज इट क्लियर? सपोज इट इज गिवन 0.75. तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0. ये लेस वैल्यू, ये वाली. सपोज इट इज गिवन -7.45. से -7.45 की लेस वैल्यू क्या होगी? -8. कम, इससे कम वैल्यू जो लेस हमने ऊपर पढ़ा था ना. तो इस तरह से ये चीजें हैं. अब सपोज -5.1. तो इसमें लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? नॉट -5, -6. ये थोड़ा सा ध्यान रखना है. और फॉर किसके लिए? इसकी वैल्यू क्या होगी? -6 लेस देन इज इक्वल टू 5.1 लेस देन -5. इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. x की जगह वैल्यू आ जाएगी क्योंकि x यही है ओबियसली. ठीक है? तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे. तो इससे हमें क्या समझ में आया? जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो वैल्यू देता है वो लेस देन और इक्वल टू वैल्यू देगा. इज इट क्लियर? तो ये सारी चीज़ें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आती है. कोई आपसे पूछे कि इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या है तो वो 2 होगी. इस तरह से वैल्यू आपको जो है गिवन होंगी तो आप उसको इजीली बता पाएंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आपकी क्या बन करके आएगी. ठीक है? तो ये थोड़ा सा एक एग्जांपल था जिसके थ्रू हमने ये समझा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बेसिकली होता क्या है.
इसके बाद इसमें एक और है टाइप जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है सिग्नम फंक्शन। थर्ड वन इज सिग्नम फंक्शन क्या होता है। तो इसमें देखते हैं द फंक्शन R2 are defined by when x not equal to 0 and 0 when x is equal to 0। बेसिकली ये साइन लगाते नहीं है, वो मैं गलती से लग जाता है इस तरह से। एंड और इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो ये है +1 when x is greater than 0, 0 when x is equal to 0, -1 when x less than 0 is called सिग्नम फंक्शन। बेसिकली ये है सिग्नम फंक्शन। आप अगर ये इजी लगता है तो इस तरह से रिप्रेजेंट करिए, ये इजी लगता है तो इस तरह से रिप्रेजेंट करिए। अब इसका जो है 1/1 समझते हैं, डोमेन क्या होगा। Is are all real number and range the range of signum function will be set of given these values। This is a range for this function and graph थोड़ा सा ग्राफ आप जो है स्ट्रेट लाइन के साथ ही बनाएंगे। दिस इज द origin 2 3 1 2 3 -1 -2 -3। सो हमारी जो रेंज है वो से ओपन होगी और इधर की तरफ, और एक -1 की है तो यहाँ से ओपन होकर के सीधे स्ट्रेट लाइन -1। दिस इज this point 0 to -1 and this point 0 to 1। तो ये रेंज हो गई हमारी। तो ये बेसिकली ग्राफ है आपका सिग्नम फंक्शन का। इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पर शो की जाएगी ऐसे। और इसका ग्राफ छूट गया थोड़ा सा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ और देख लेते हैं। जगह है यहाँ पर थोड़ी, इसी में समझ लेते हैं। ये आप अपने हिसाब से
ड्रॉ कर लीजिए। ये ओरिजिन है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें लेते हैं जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप वैल्यू 0 से कम 1 है तो यहाँ ये इंक्लूड नहीं होगा। ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है। 1 2 3 4, -1 -2 -3, -1 -2 -3 -4। तो उसको इस तरह से 1 तक जाएगा। फॉर 1, फॉर 2, 2 के लिए 3 इंक्लूड नहीं होगा 2 के लिए, इस तरह से। तो इस तरह से जो है इसके ग्राफ बनते हैं। -1 के लिए तो यहाँ से यहाँ तक, -2 है अगर वैल्यू तो यहाँ से -2 तक। तो बेसिकली अगर -3 है तो -2 नहीं होगा यहाँ से और 3 तक। तो ये इस तरह के सेम एज इट इज यहाँ 4 नहीं होगा और 3 तक। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ इस तरह से बनता है जैसे ये वैल्यूज आपको समझाई थी मैंने, उसी के हिसाब से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये ग्राफ है। और जो है ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है। तो इस तरह से हम जो है सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन, इन सभी के ग्राफ को जो है इस तरह से डिस्कस करेंगे। इसके बाद आ जाता है आइडेंटिटी फंक्शन। द फंक्शन स्टेटमेंट उसी तरह से लिखेंगे सभी की, बेसिकली एक ही तरह से स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट जो है लिखते हैं। डिफाइंड बाय, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है, इस तरह से ऐसे लिखी जाती है, रिप्रेजेंट की जाती है। तो यहाँ फंक्शन की जगह बिकॉज आइडेंटिटी फंक्शन है तो आप यहाँ आई भी ले सकते हैं, आई इस तरह से आइडेंटिटी फंक्शन आप अगर दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो आई ऑफ एक्स फॉर ऑल x belongs to real number is called the आइडेंटिटी फंक्शन। उसके बाद इसका डोमेन और रेंज समझ लेते हैं, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। डोमेन एंड रेंज आप पढ़ चुके हैं इसकी, ठीक है, पहले प्रीवियस जो है 11th क्लास में। तो मैं एक डोमेन और अगर दिक्कत है तो डोमेन और रेंज की एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने डोमेन और रेंज पढ़ लिया है, जिसकी वजह से रिलेशन और फंक्शन की, तो मैं इसकी डोमेन और रेंज लिख देता हूँ। डोमेन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन आर होगी रेंज ऑफ ऑल्सो विल बी आर। दोनों सेम होती है आइडेंटिटी फंक्शन में,
उसके बाद जो है समझ लेते हैं ग्राफ। आइडेंटिटी फंक्शन का जो ग्राफ होता है, आइडेंटिटी फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है जो ओरिजिन से होके जाता है। बस ये ध्यान रखना। y इज इक्वल टू फंक्शन दिया है, ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है, तो इसका ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन जो है पास करेगी ओरिजिन से। जो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करेगी और ये जो एंगल होता है वो 45 के एंगल पर जो है ये यहाँ से पास करती है। इंक्लाइंड एन एंगल 45, 45 के एंगल से स्ट्रेट लाइन पर ये पास करती है, इसलिए इसको आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन का ये जो है ग्राफ। तो बेसिकली ये जो है हमने चार टाइप्स डिस्कस किए। आई होप कि आपको ये समझ आए होंगे, और कहीं में किसी में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।